पापा है और एक मेरा बड़ा भाई है। So yeah, it's a privilege to be a pastor's kid. तो इसलिए ये सौभाग्य की बात है कि हम पास्टर के मैं बेटा हूँ। Can I know who all are pastor's kids here? यहाँ कोई और है जो पास्टर का बेटा है? You are a pastor's kid. Okay, no one? Oh, fine. That's कोई all नहीं। right. Okay. You know why I'm so happy today? आपको पता है मैं आज इतना खुश क्यों हूँ? Because the word says that the kingdom of God is righteousness, peace, and joy. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का राज जो है वो है धार्मिकता, शांति और आनंद। You know, with righteousness, और धार्मिकता के साथ that means the right relationship with God, उसका मतलब है कि परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ता होना, automatically comes peace. और उसके साथ आता है शांति। And when you have peace, और जब आपके पास शांति है automatically joy bubbles out of you. तो आनंद अपने आप आपके अंदर से उमड़ने लगता It's है। very simple. बहुत ही आसान है। So you don't have to be serious. तो आपको बहुत यहाँ सीरियस होने की जरूरत नहीं है। Your father is here आपका पिता यहाँ है and he loves you. और वो आपसे प्यार करता He है loves you dearly और आपसे बेहद प्यार करता and है he loves you so much that he was ready to give his only son for you. और इतना प्यार किया कि उसने अपना बेटा आपके लिए दे दिया। Even when you were sinners, even when you were lost, even when you felt like even when you hated God, जब आप पापी थे, जब आप परमेश्वर से घृणा करते थे, at that very moment he loved you with an everlasting love. उस क्षण उसने आपसे प्यार किया अपने असीमित प्यार से। You know, the Bible tells that I have loved you with an everlasting love. वचन में बताया था कि परमेश्वर हमें असीमित प्यार से प्यार करता है। And you know where this part is written, the context of that is in the book of Jeremiah. Israelites were already sinning and they were to be sent. They were in exile. और यिर्मयाह में हम देखते हैं कि जो इजरायली थे वो लोग एग्जाइल में थे, Yeah, मतलब वो बंदवाई में थे. बंदवाई में थे And they were bitterly sinning. और वो पाप कर रहे थे And they were like crazily after sin, prostitution and whatnot, idol worshipping and everything happening. और बहुत अन्य अन्य प्रकार के पाप उनके बीच में हो रहे थे उस समय पे। And they were destroying each other, killing each other, एक all of दूसरे this का stuff. नाश देख रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे। But in that very moment, पर उस क्षण में भी Father told them, पिता ने उनसे ऐसा कहा। you know, in the older it's Jehovah, but Father actually told them, I have loved you with an everlasting love. और पिता ने उस क्षण में भी यही कहा कि मैं तुमसे असीमित प्यार से प्यार करता हूँ। Okay, so the Father loves you with an everlasting love. तो इसलिए परमेश्वर का प्यार आपके लिए वो असीमित है। Even if you blow up big time, अगर आप बहुत बुरे भी बन जाते हैं, even if you make a huge mistake, अगर आप बड़ी गलती कर बैठते हैं, I want to tell you that He loves you. वो फिर भी आपसे प्यार करता है। आपको He बताना loves चाहता you the same. हूँ वैसा ही प्यार करता है। He loves you the same. आपको उसका प्यार बदलता नहीं। You know, the gospel is very simple. और जो सुसमाचार है वो बहुत ही सरल है Yeah, it's too good to be true. और बहुत अच्छा है सही होने के लिए। It's very simple. बहुत साधारण है, You don't have to complicate it. आपको ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं It's है। too good to be true. बहुत सरल है। Okay? So, one of the things that I really want to talk about is this. I was feeling it in my spirit. और मेरी आत्मा में मुझे ऐसा लग रहा था, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। It was actually how the Father takes care of us. कैसे पिता हमारा ध्यान रखता है। Before I start this, I really wanted to share a story with you. और ये शुरुआत करने से पहले मैं कहानी में जाना चाहता हूँ। So it was day before yesterday when I woke up late. I am trying to wake up early in the morning, but I woke up late. और परसों के दिन ऐसा हुआ कि मैं जल्दी उठने की कोशिश कर रहा हूँ, बट परसों के दिन मैं लेट उठा। So I had already set my schedule, like, you know, wake up at 7, pray, and then do stuff. But because I woke up late, my whole schedule was destroyed and my mind was like boggled up. और क्योंकि मैंने समय को नियुक्त करके रखा है, 7 बजे मैं उठता हूँ और फिर उसके बाद मैं प्रार्थना करता हूँ और उसके बाद मैं बाकी चीज़ों को करता हूँ, पर क्योंकि मैं लेट उठा तो वो सब चीज़ें बिगड़ गई। And the problem was this whole week I was not able to wake up early. और इस पूरे हफ्ते ऐसे ही हो रहा था कि मैं जल्दी नहीं उठ पाया। And there was built up frustration inside of me. I'm like, God, why is this happening? और मेरे अंदर बहुत बेचैनी हो रही थी कि परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है। And then I woke up late and then I was like, okay, fine, no problem. Then I did my work. I then planned that I wanted to cut my hair, get a haircut done. और फिर ऐसा हुआ कि मैंने प्रार्थना किया और फिर मेरे को उस दिन अपने बाल को कटाने जाना So था। I actually planned to go in the evening after my gym. और मैंने सोचा कि जिम के बाद मैं शाम को जाऊंगा बाल। And things came up and I went to the barber late. और कुछ चीज़ें आ गई और मैं बहुत लेट गया अपने बाल को कटाने के लिए। And then when I went there, the barber told me that the barber that cuts your hair has actually gone to the mosque to read Quran. और जो नाई मेरा बाल काटता है वो नमाज पढ़ने को मस्जिद गया Yeah. था। And the problem was I had
a 30-minute slot, and then I had to go take a class. और दिक्कत ये थी कि मेरे पास 30 मिनट ही था बाल कटाने के लिए और उसके बाद मेरे को क्लास जाना था। And then I was like pretty frustrated. I was like, God, what is happening? और मैं बहुत वापस से व्याकुल हो गया और मैं बोलने लगा परमेश्वर ये क्या हो रहा है। So this built up frustration over the week was like, oh man, I was like super angry. I'm like, God, everything is falling down. What is happening? और पूरे हफ्ते ये व्याकुलता मुझ में रही और मैं पूछ रहा था परमेश्वर क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। So I asked the Lord, और मैंने परमेश्वर से इसलिए and पूछा God told me, और परमेश्वर मुझसे कहा son, बेटा go eat something. आप जाके कुछ खाओ। So I was like, I'm angry right now, and I don't want to stress eat. And he was like, no, you're not going to stress eat. I know. मैंने परमेश्वर से कहा परमेश्वर मैं आपको पता है मैं गुस्सा हूँ और मैं अगर गुस्से में खाऊंगा तो मैं गुस्से में बहुत ज्यादा खाऊंगा। So I usually eat twice out in the week. Like I usually eat out twice in a week. और मैं hafte में 2 बार ही बाहर खाता हूँ। So, so I had not eaten in that week, and I was very frustrated. I was like, God, I've not eaten outside, and I had very little cash with me. I just had 50 rupees for my fun, and then different stuff. But just for my fun, I had 50 rupees, and I was like, God, oh man, I am frustrated right now. और मेरे पास उस समय अच्छी चीजों के लिए पैसा खर्च करने के लिए 50 रुपए ही बचा था। Yeah, just for my fun, it was 50. So I thought, okay. और मैंने कहा ठीक है I'll go to Lal Ghati. I'll have good fulki over there because it's been months that I have not had a good fulki. I'll go and have some good fulki there. और मैंने सोचा मैं जाके पानी पूरी की फुल्की खाऊंगा और बहुत समय से नहीं खाया था इसलिए। Yeah. Okay. So when I went there, और जब मैं गया वहाँ I started eating. मैं खाने लगा The first bite I had, और पहला जो मैंने पहले फुल्की काटा it was the worst pani puri. और काटते ही मुझे समझ में आ गया कि ये सबसे अभी तक की बेकार पानी पूरी It was the worst pani puri I had ever had. इतनी बेकार थी आज तक मैंने इतनी बेकार पानी पूरी नहीं खाई थी। And I was like, okay. So I went to a guy who had 7 flavors of pani puri, okay? और फिर मैं उस जन के पास पहले गया था जिसके पास उसी The दिन same guy, the same guy. और उसी के पास 7 प्रकार की पानी पूरी थी। And I was like, okay, we have 7 flavors. Let's be patient. I'll try every flavor, and then if I like one of them, I'll eat it. तो मैंने कहा चलो ठीक है 7 अलग अलग प्रकार के हैं तो मैं एक एक करके और फिर कोई एक मुझे पसंद आएगा वो मैं खाऊंगा। The thing was, और हुआ ये all 7 of them were pretty bad. और 7 के 7 तो बेकार थे। And then I went to try dabeli because I wanted to try dabeli. और ताबेली करके चीज है उसको मैं चखना चाहता था। Because I'm a Maharashtrian and I've heard a lot about dabeli. और दाबेली के बारे में बहुत सुना है क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ। So I went there in Lal Ghati and there was a place and there was a guy selling dabeli. और लाल घाटी में जब मैं गया तो वहाँ एक जन था जो ये बेचता था। So I went there. I was like, भैया एक dabeli दो. And I went there and asked him, please give me one dabeli. And he was like, भैया 2 दूं? मैंने कहा नहीं 1 दे दो. ऐसी दिमाग खराब है अभी. He said, should I give you 2? I said, no, my mind is not working properly. Give me 1. So the interesting thing is, I just have 5 minutes and I have to run off to the coaching. और अब मेरे पास सिर्फ 5 मिनट ही बचा और मेरे को उसके बाद क्लास लेने So जाना I है। was like, okay, give me 1. तो मैंने बोला कि मुझे एक दे So दीजिए। 15 rupees was gone for pani puri and I just had around like 35 rupees left. तो 15 रुपए पानी पूरी के लिए दे दिए थे और मेरे पास अब सिर्फ 35 बचे थे। So I was like, fine, this will be for like 10 or 15 maybe. मुझे लगा शायद 10 रुपए होगा ज़्यादा ज़्यादा 15 रुपए होगा। So I was like, okay, give me, and I ate it. And then he told me, Bhaiya, it's for 25. और उसने मुझे दिया और उसने बोला कि भाई 25 रुपए का So है। in my mind, I was like, it doesn't even taste like 5 rupees, bro. और मैं मन में सोच रहा कि 5 रुपए के लायक भी नहीं है पर ठीक है भाई Because the taste was horrible, okay? क्योंकि बहुत उसका स्वाद अच्छा नहीं था। Okay, so dabeli in the Maharashtra would be different, but here in Lal Ghati, it was like. और धाबेली महाराष्ट्र में अच्छा होगा पर यहाँ गांधीनगर में अच्छा नहीं Then था। built up लाल with घाटी। frustration, I went to my class. और फिर मैं इसी व्याकुलता के साथ अपनी क्लास लेने गया And then I had to pee as well. और मुझे टॉयलेट भी जाना So था। it was all of these things were coming together and I was like being bent down. और आप समझे कि उस समय में ये सब चीजें मेरे साथ हो रही थी और मैं बहुत ही या झुका हुआ था। And though, come on, give a clap offering. Jerry, bhai, come on. So I went to the washroom of the owner of the house और जिस घर पे मैं क्लास लेता हूँ उनके घर में मैं वॉशरूम यूज and किया I was there in the toilet. और मैं जब टॉयलेट में था You know, I have the best conversations in the toilet with God. मैं बहुत अच्छे मेरे वार्तालाप होते परमेश्वर के साथ टॉयलेट में because there's no noise. You are just peaceful there. क्योंकि you know. वहाँ बिल्कुल शांति आप अकेले हैं। Those who get it, like you get it. If you know, you know. Okay. जिन If you लोगों know, को you know. पसंद है वो चीज वो समझते हैं। Okay. So I went there
And I was in the washroom. I was like, Father, I am done. I was like, I don't know. I know you're a good father. I trust you. But right now, honestly telling you, people have given their dreams, people have given their everything. I give my frustration to you. तो मैंने वहाँ बोला, पिता मैं आपके सामने आता हूँ, मैं पता है आप भले हो, पर मेरे अभी बहुत मेरे जीवन में चीज़ें उलट पुलट चल रहा है, तो मैं आपके पास इसको मैं दे देता हूँ। Yeah, so I just give it to you. और आपको लोग सपने देते पर मैं ये आपको दे देता हूँ। So, and I was like, I need comfort, Father. और मैंने बोला परमेश्वर मुझे ठहराव की ज़रूरत है। Please help me, comfort me, do आप something. आप मेरे को गले लगाएं, आप मुझे ठहराएं। The thing is, Father did not do anything. और उस समय हुआ ये कि पिता ने कुछ नहीं किया, He did not even speak a word. उसने कुछ मुझसे बात भी नहीं किया। And I was like, okay, fine, let's play this game now. और मैंने बोला ठीक है पिता, आप अगर ऐसे ही करना चाहते हैं तो चलेगा। And I went outside और मैं बाहर गया and I took the class. और मैंने क्लास को लिया। I got super angry on the students. और मैं कुछ बच्चों पे गुस्सा हुआ उस दिन। They were like, भैया आज आपका ये जो फॉर्म है ना, हमने आज तक देखा नहीं था. And they said we have never seen you like this before. Yeah, but after taking the class, और क्लास लेने के बाद I got a call मेरे को एक कॉल आया and they said, और उन्होंने कहा, bro, are you free? बोले भाई क्या आप अभी व्यस्त हैं? So I was like, no, I gotta take a practical. I was working for my masters, so I gotta go take a practical. और मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ उसके लिए मुझे एक प्रैक्टिकल लेने जाना था। So he said, the person said, no worries, cancel the practical, come. और उस व्यक्ति ने कहा कि कोई बात नहीं, आप अपने प्रैक्टिकल कैंसिल कर दें और आप आए। And I was like, no, bro, I think I gotta go. और मैंने उनसे कहा नहीं भाई मुझे जाना ज़रूरी है, मैं जा रहा He हूँ। was like, cancel and come, please. वो बोले कि नहीं कृपया करके उसको कैंसिल करके आप आए। And he was like, I don't know, you have to come. और वो बोले कि मैं नहीं जानता, आपको आना ही I पड़ेगा। was like, fine. मैंने बोला ठीक है। When I was there, और मैं वहाँ पहुँचा he told me, tell me what do you want to eat. और वो मुझसे पूछे कि बताओ मुझे कि तुम्हें क्या खाना है। And I was like, anything works, bhai, like anything works. और मैंने उनसे कहा कि कुछ भी जो भी आप खिलाएंगे मैं खा लूँगा भाई। And then we were in the car together और जब हम कार में साथ में थे and we were discussing about the place and then they saw Hong Kong. और हम जब जगह के लिए डिसाइड कर रहे थे तो हमने देखा हांगकांग। So Hong Kong in MP Nagar is like pretty bad, but Hong Kong in Data Colony is like one of the most amazing Hong Kongs, okay? और हांगकांग एमपी नगर वाला तो खास नहीं है, पर जो दाता कॉलोनी है वो बहुत बढ़िया है। So it is one of my favorite restaurants in Bhopal. और भोपाल में सबसे मेरा पसंदीदा एक वो And I रेस्टोरेंट है। knew with just 15 rupees in my hand, I could not go to Hong Kong. और मुझे पता था कि 15 रुपए के साथ तो मैं हांगकांग नहीं जा सकता। But the guy told me, hey, have you ever been to Hong Kong? तो वो मुझसे पूछा भाई आप कभी हांगकांग गए क्या? And I was like, yeah, it's like pretty good. और मैंने बोला हाँ बहुत अच्छा है वो जगह। And he was like, yeah, let's go then. तो बोले चलो फिर चलते हैं वहीं। And I was like, okay. तो मैंने बोला ठीक है। We went there. और हम गए वहाँ He gave me the menu. और उनने मुझे मेन्यू दे He दिया। was like, you know better, right? Order whatever you want to order. वो बोले कि आपको बेहतर पता है, आप बताइए आपको क्या So I've मंगाना है। learned not to be like, अरे नहीं 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 नहीं. I've learned this lesson. और मैंने ये सीख लिया है कि नहीं 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 बोलता, मैं कर देता हूँ। Yeah, if somebody asks you to do something, do it. अगर किसी ने मुझसे कुछ कहा है तो मैं से कर देता It's a blessing. हूँ। और वो आशीष ही होती Don't be है। like, no, 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 no. If they've asked you, do it, do it. हमेशा आपको ना 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 बोलने की जरूरत नहीं है, पर आपको हाँ बोलने की जरूरत I है। saw it as an opportunity. और मैंने उसको एक अपॉर्चुनिटी के समान And I देखा। ordered my favorite things. और सबसे जो मेरे पसंदीदा चीज थी उसको मैंने I मंगाया। ordered dragon chicken. Ordered Thai red curry. I ordered drunken noodles. Okay, and then my favorite is fruit bubble tea, and I ordered that as well. और सब कुछ जो मुझे खाने के लिए पसंद था वो मैंने मंगाया, और मैंने पीने के लिए मेरी पसंदीदा चीज मंगाई। Yeah, and I ate it, and then I went home. और मैंने उसे खाया और मैं घर गया। As I was journaling, और जब मैं रात को बैठ के एक डायरी में लिख रहा था, so I started writing. और लिखते समय You know what I wrote? क्या लिखा It was मैंने very आपको बताया? powerful and profound. बहुत ही सामर्थ्य था, और मैं आपको बताना चाहूँगा। Okay. Sometimes, कभी कभार yeah. Sometimes when we go to God, or sometimes when we go to people, जब हम कभी कभार लोग के पास जाते हैं, you know, sometimes we think when we'll go there, Father will fix us. हम सोचते हैं कि हम जब वहाँ जाएंगे तो पर पिता हमें ठीक करेगा, But rather, पर कई बार the Father knows पिता को ये पता है what will make you happy. कि क्या चीज़ आपको खुश करेगा। Okay? You think you'll go there and you'll be like, Father, I'm feeling bad. Please fix me. और आप कई बार सोचते हैं आप पिता के पास जाएंगे, बोलेंगे पिता मैं आया हूँ, आप मुझे ठीक करें। But Father, in His love, और पिता अपने प्यार में will give you the thing that makes you so happy.
आपको वो देगा जो आपको सबसे खुश करता है, Okay? And you'll be surprised by how good He is. और आप अचंभे में रह जाएंगे कितना अच्छा है वो. You thought आपने सोचा, that you would go to the Father and you'll be like, Father, I'm frustrated. आप बोलेंगे पिता से, पिता मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हूँ. At times, He will give you peace, yes. और कई बार वो आपको इसलिए शांति देगा, But at times, because of His love for you, पर कई बार क्योंकि वो आपसे इतना प्यार करता है, because He loved you so much, कि इतना वो आपसे प्यार करता है, that He will give you what you need at that very moment. और वो कई बार आपको तुरंत ही आपको जो चाहिए वो देगा, That will make your day. और वो आपका दिन बना देगा. That thing will make your day. वो चीज जो है जो उसने की वो आपका दिन You बना know what I देगा. was saying in my heart? आपको पता है मैं दिल में क्या बोल रहा था? This was one of the worst days of this year. और ये सबसे बुरा दिन था पूरे साल में, Until I came to that hotel. जब तक मैं उस होटल में नहीं पहुंचा. Later on in the evening, when I went there, पर जब मैं शाम को वहाँ गया, I told the Father, मैंने पिता से कहा, I've had one of the best days that I've had in this time. और मैंने पिता से कहा, पिता आज सबसे बढ़िया दिन था जो मैंने अभी तक देखा है. The Father knows what you need. पिता को पता है आपको क्या चाहिए. He's a good Father. वो भला पिता है. You can just trust Him. आप उसके ऊपर विश्वास रख सकते हैं. Okay? And I want to tell you, we've been in this culture of, where people have spoken like, hey, give your dreams to God, give your desires to God. That's very good. But I want to tell you, with your dreams and desires, you can also give your frustration. You can also give your anger. You can also give your broken dreams to God. हमें ऐसे समय में रहते हैं जहाँ हमको सिखाया जाता है कि अपने सपनों को और अपने जीवन को सब हम परमेश्वर को दे दें, पर आप उसके साथ साथ कई बार जब आप गुस्सा हैं, जब आप फ्रस्ट्रेटेड है, वो भी आप परमेश्वर को दे सकते हैं. The altar is just not for your good things, जो परमेश्वर का ऑल्टर है वो सिर्फ अच्छी चीज़ों के लिए नहीं है, but it is also for those broken things that you've felt hurt about. उस वेदी पे आप जो चीज़ आपको तोड़ती हैं उनको भी आप लेके जा So सकते you हो. can surrender your dreams, you can surrender your whatever you want to surrender. But I want to tell you, you can surrender your anger. तो You आप can, you can surrender your hurt. You can surrender your broken relationships. You can just give. तो अपने सपनों के साथ साथ आप अपने टूटेपन को, आपके टूटे रिश्तों को आप वेदी पे लेके जा सकते The altar is an open place where Jesus is not afraid. Whatever you'll give Him, He will make something beautiful out of हैं. और it. उस वेदी पे आप जो भी ले आते हो परमेश्वर उससे डरता नहीं है. जो भी आप ले आओगे परमेश्वर उसको बदल के You आपको, might feel like a trash. आपको ऐसा लगता होगा कि आप कचरा है. Okay? But don't worry. Just if you think you're a trash, tell Him, I feel like I'm a trash. और जिस दिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप कचरा है, आप बोले हाँ परमेश्वर मुझे आज ऐसा महसूस हो रहा है. Telling you, when you surrender that on the altar, और जब आप उसको उस वेदी पे दे देंगे, He will make something beautiful out of you. वो कुछ खूबसूरत उसमें से And He will निकालेगा. remind you that you are not a trash, but you're so precious that I decided to die for you. और वो आपको मदद करेगा ये जताने के लिए कि आप एक कचरा नहीं है, आप खूबसूरत हैं. It already feels like an altar call, right? अभी वैसे ही लग रहा है कि हम वेदी पे हैं, But I'm not going to do it. पर अभी हम नहीं करने वाले. Okay. Because I think we're going to go further. We're थोड़ा gonna सा go हम deeper. आगे जाएंगे गहराई में. Are you ready to hear the word now? क्या आप तैयार है वचन सुनने के I लिए? just have got like 25 minutes. और मेरे पास 25 मिनट है. I'll go fast, okay? मैं थोड़ा तेज जाऊंगा I promise to finish on time. और मैं समय पे खत्म करूंगा. Okay? So, how many of you heard the topic for this week? कितने लोगों ने इस हफ्ते का जो शीर्षक है वो पता है? How many of you know the topic for this week? किसी को पता है क्या है इस हफ्ते का शीर्षक? No? Yes? Yes? No? Okay. I actually made it a very beautiful topic so that you could see it, but no problem, I'll tell you. The topic for this week is key to growing in life. और इस हफ्ते का जो शीर्षक है वो है कैसे हम हमारे जीवन में बढ़ सकते हैं. The key to growing in life. कैसे हमारे जीवन में हम बढ़ सकते हैं. Okay? So you can write it down on your notes, you can take something out, take your phones out if you want to take it out. But it's important that you learn that it is the Father's desire that you grow in life. और आप जो भी आप जहाँ भी लिख रहे हैं उसको लिख लें कि हम हमारे पिता जो है वो चाहता है कि हम हमारे जीवन में बढ़ोतरी करें. Okay? It is the desire of the Father for you to grow परमेश्वर पिता चाहता है कि आप बढ़ें and you become fruitful. और आप फलदायक बने. So, John 15:16 says, और यूहन्ना 15:16 कहता है. let's all take it out, okay? हम क्यों ना उसे निकालेंगे. Wow. Thank you, God, for making this spiritual with those songs. Just kidding, okay? Just kidding. Don't get me serious. John 15:16. Okay.
We'll all read it together. Okay. Those are in English, English. Those are in Hindi, Hindi. Whatever Bible you have, let's all read it together. यूहन्ना 15 का 16. Are you ready? हम साथ में पढ़ेंगे. Let's क्या go. आप तैयार हैं? 1, 2, 3. Let's go. You not तुमने choose मुझे me. चुना है परंतु but I मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जानकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से कुछ भी पिता से मांगोगे वो तुम्हें दे. तुम फल लाओ. We bear fruit. Okay. पिता की ये इच्छा है कि आप फल लाओ. Father wants that you bear fruit. जब उत्पत्ति में बाइबल में लिखा गया तो प्रभु ने ये आशीष दी, फूलो फलो और पृथ्वी में या. In Genesis, when God blessed Adam and Eve, He said, "You be fruitful and multiply." Be fruitful. Multiplication is 1 human, 2 human, 3 humans, you know, the marriage thing and then everything. But fruitfulness means that you bear fruits. और बढ़ोतरी क्या है कि एक इंसान दूसरे इंसान फिर ऐसा है, पर जो फल लाने का मतलब है कि आपके जीवन में आप बढ़ो. And you want to know the key to faith, the key to growing? आपको पता है बढ़ने के पीछे का राज क्या है? You want to know that? आपको जानना है? Okay. Let the drum roll begin. Okay. और आप ड्रम रोल दे सकते हैं. Just kidding. The key to growing in life is very simple. It's actually faithfulness. और बहुत आसान बात है. कैसे आप जीवन में बढ़ोतरी कर सकते हो? आपको विश्वास योग्य बनना है. Yeah, it's faithfulness. और विश्वास योग्यता है. No. It's good that we declare. बहुत अच्छी बात है कि हम चीजें घोषणा करते हैं. Declarations are powerful. और जो घोषणा करते हैं वो बहुत सामर्थी हैं. Declarations bring things from the unseen to the seen. और जो चीजें हम घोषणा करते हैं वो जो हम देख नहीं सकते उससे हम देख नहीं But पाते for हैं. you to grow in the seen, पर अगर आपको जो आप देख पाते हो उसमें बढ़ना है you have to be faithful. तो आपको विश्वास योग्य होना पड़ेगा. You understand? क्या You ask समझ for a car अगर आप एक कार को मांगते and हैं you'll be like, hey, I've got the word, I declare car come, car come, car come. और आपको वचन मिलता है और आप बोलते हैं कि कार आएगा कार आएगा कार आएगा. And you were dreaming for an Audi. और अगर आप ऑडी का सपना देख रहे थे, You got a word for an Audi. आपको वचन भी मिल गया कि You were ऑडी seeing मिलेगा. in your dreams for an Audi. आपके सपनों में आप देख रहे हो कि ऑडी मिलेगा, But you got a Maruti 100. पर 800. आपको sorry. मारुति 800 मिला. You know why you got that Maruti 800? क्यों मिला आपको मारुति 800? Because when you become faithful with that Maruti 800, क्योंकि जब आप उस मारुति 800 के साथ विश्वास योग्य रहेंगे God is ready to give you that Audi that you were desiring. तो आप जो ऑडी चाहते थे परमेश्वर वो भी आपको लाके देगा. Okay? Amen. Do you get it? We'll go into the word. We'll go deeper in the word. But I want to tell you, I want to tell you that growth is automatic in life. और हमारे जीवन में जो बढ़ोतरी है वो कई बार ऑटोमेटिक है. You don't have to ask God for growth. आपको परमेश्वर से कई बार मांगने की जरूरत नहीं है, Because the Father wants that you grow in life. क्योंकि पिता चाहता है कि आप बढ़ो आपके जीवन And में. He's given you the key to growing in life. और उसने ये कुंजी आपको दी है कि कैसे आप बढ़ सकते हैं And that जीवन is में, faithfulness. और वो है विश्वास योग्यता. Okay? So when you become faithful to something, तो जब आप विश्वास योग्य थे किसी चीज को लेकर you automatically grow. तो आप बढ़ने लगते हैं. So when I wrote my first song, तो जब मैंने मेरा पहला गीत लिखा था man, I was not a believer then. और मैं तब एक विश्वासी नहीं था. I was a Christian but not a believer, okay? मैं एक विश्वासी था पर मैं सच्चा विश्वासी नहीं था. Yeah, I was a Christian. I was like, yeah, I'm a pastor's kid, so you get that, right? और मैं एक Being a Christian is mandatory, right? और मसीह हूँ, मैं पास्टर का बेटा हूँ तो मसीह होना But I did not जरूरी है. have a relationship with God. पर मेरा परमेश्वर के साथ का रिश्ता नहीं था. So the first song that I wrote was about breakup. तो पहला जो मैंने गाना लिखा वो मेरे साथ ब्रेकअप हुआ था उसके बारे में था. And the moment I wrote it, I was crying. और जैसे ही मैंने वो लिखा तो मैं रोने But लगा. after 1 year when I saw it, और जब एक साल बाद मैंने उस गाने को देखा oh man, it was one of those worst songs that I ever wrote. I was like, I'll just put this song out of my sight. I'll do something with this song. और मेरे को एक साल बाद जब मैंने उस गाने को देखा तो मुझे लगा मैंने क्या लिखा, सबसे बेकार गाना है जो Yeah, मैंने it was लिखा. the worst song that I've ever heard as well. आज तक जो मैंने लिखा चाहे सुना वो सबसे बेकार गाना था. And I was like, fine. और मैंने कहा ठीक है, But I kept writing. पर मैं लिखता रहा, I kept writing. मैं लिखता रहा, I kept writing. मैं लिखता रहा, Kept writing. मैं लिखता रहा, Kept writing. लिखता रहा. And one day, और एक दिन I got this song मुझे गीत मिला that blew up in our church. और हमारे चर्च में बहुत सबको पसंद आया. And I believe it's gonna blow up globally as well. और मुझे पता है कि पूरे दुनिया भर में लोग उसको सुनेंगे. You know, not because I am special, और इस कारण से नहीं कि मैं बहुत खास हूँ, but because He entrusted me this song. पर क्योंकि पिता ने मुझे वो गीत दिया. It was from His heart that came to me. वो उसके दिल से बहता हुआ मेरे जीवन में So है. yes, I partnered with it, but it is His heart that has come. तो मैं उसके साथ मिलके लिखा पर उसकी ओर से आया But है. this journey started 6 years ago, where I was writing. पर ये जो शुरुआत हुई है 6 साल से मैं लिखता आ रहा था. And I'm telling you,
और मैं आपको बताना चाहता हूँ, That song blew up in the church. और वो हमारे कलीसिया में सबको बहुत पसंद आया। It has been, oh man, one of my favorite churches, Lighthouse Delhi, told that they sang this song. और जो दिल्ली में कलीसिया लाइट हाउस, उनने उनके कलीसिया में गाया। One of the members of FOLJ church texted me and said, "Bro, what a song!" और एफओएल कलीसिया के एक बंदे ने मुझे टेक्स्ट करके बोला क्या गाना लिखा है, And then I was like, "Father, और मैंने बोला पिता thank you for giving me this song." धन्यवाद, ये गीत आपने मुझे दिया। And the father said, और पिता ने मुझसे कहा, "Son, बेटा thank you for being faithful with what you've given." धन्यवाद कि तू विश्वास योग्य था जो मैंने तुझे दिया उसके साथ। Okay? So I'm telling you, faithfulness will lead you to growth automatically. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, विश्वास योग्यता आपके जीवन में बढ़ोतरी को लाएगा। So all of you might be knowing about the story of talents, right? आपको पता होगा कि तोड़ों के बारे में जो वचन में बताया है So हमें। in Matthew 25:14, let's take out Matthew 25:14. और हम मत्ती उसका 25. 25 And मत्ती 14, verse 25 मत्ती 25 और उसका 14। Okay? Let's all read it. और हम साथ में पढ़ेंगे। Okay, let's not go to 25. I think I'm going to tell you the story, but let's go to 23. और 23 में जाएंगे। 23. 25, 23. 25, 23, okay? 25 का 23 में Let's read it जाएंगे। together. हम साथ में पढ़ेंगे। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद से सहभागी हूँ। Okay, so I'm giving you the story. और मैं आपको कहानी बता So रहा a हूँ। master was there तो एक स्वामी था and he had 3 servants. और उसके पास 3 काम करने वाले And थे। let's say he gave one person 10,000 coins. एक जन को हम कहेंगे कि 10,000 सिक्के Rupees. दिए, Okay, let's say rupees. 10,000 रुपए दिए। To the other person he gave 2,000 rupees. दूसरे व्यक्ति को 2,000 And दिए the third person he gave 1,000 rupees. और तीसरे व्यक्ति को 1,000 And he दिए। went there and he told them, "I'm going out and then later on I'll come back." और उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ और मैं थोड़ी देर बाद वापस आऊंगा। So the first guy invested that 10,000 rupees तो जो पहला व्यक्ति था उसने वो 10,000 रुपए को इन्वेस्ट किया and then he got 20,000 back. और उसने उसको 20,000 The कर other दिया। guy, 2,000, और दूसरा व्यक्ति जो था उसने got 2,000 लिया, 4,000 back. उसको 4,000 कर The दिया। last person आखिरी व्यक्ति जो था with the 1,000 1000 जिसके पास था, hid it उसने उसको गाड़ दिया and he did not do anything with it. और उसका कुछ भी नहीं किया। Okay, and when the master came और जब स्वामी आया to the first person, he said, "You've been faithful over little. उसने कहा कि तू छोटे में विश्वास योग्य था Now I'm gonna make you ruler over 10 cities." और मैं अब तेरे को 10 शहरों के ऊपर अब अधिकार दूंगा। You see, 10,000 से straight 10 cities. आप देख सकते हैं 10,000 से सीधा 10 शहर, 2,000 से सीधे 2 शहर. from समझ 2 रहे हो? cities to 2 And to the last guy, और आखिरी व्यक्ति जो था because he was unfaithful, वो क्योंकि विश्वास योग्य नहीं था he is like, send him off. और वो उसको भेज दिया। Okay, I've modernized the version, but when you read, it's talking about talents, 5 talents, 2 talents, and 1 talent. But I've like modernized to our language. और मैंने अपने तरीके में बताया, बट वो वहाँ अलग तरीके से कह रहा है। Over there, the word faithfulness पर वहाँ जो शब्द है विश्वास योग्य or था faithful या विश्वास योग्य, actually means the Greek word is pistos. वो कहता है, उस शब्द का अर्थ है पिस्तौस। It is very near to faith. वो शब्द जो है वो बहुत करीब है फेथ वाले वर्ड से। Yeah, faith means pistis, but the Hebrew, the Aramaic or the Greek word for faithful is pistos. और जो ग्रीक वर्ड है वो पिस्तौस है That means being trustworthy. और उसका मतलब है कि विश्वास योग्य। Okay. So, what does trustworthy mean? तो क्या मतलब विश्वास योग्य? As a person that can be relied upon. एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। So, understand me, okay? अब आप समझना, God wants to bless you tremendously. परमेश्वर आपको बहुत आयिक रूप से आशीष देना चाहता है। He wants to make you a millionaire, billionaire, what not. वो आपको बहुत अमीर देखना चाहता है, आपके जीवन में बहुत चीजें करना चाहता He है। wants to bless your household. He wants to bless your family, do everything. वो आपके घराने को आशीष देना चाहता है, हर चीजों पे आशीष देना चाहता है। But परंतु He doesn't want you to be destroyed. पर वो नहीं चाहता कि आप नाश हो जाए। Why I'm telling you? क्यों मैं बता रहा हूँ? Okay? God will give you a dream, परमेश्वर आपको एक सपना देगा, but He'll be waiting for you to become faithful with what He has given you less. पर आपको पहले से जो उसने दिया हुआ है उसमें आप विश्वास योग्य था वो आपका देखना चाहेगा। So that when you have more,
ताकि जब आपके पास बहुत आय से हो you are able to handle that more. तो आप उसको अच्छे रूप से आप उसे संभाल पा रहे हो। Otherwise, नहीं तो क्या होगा, that very dream that could have made you successful will destroy you. वो जो सपना आपको बहुत ऊंचे पर ले आता वो सपना आपको नाश कर देगा। For an example, एक उदाहरण दूंगा, let's take Michelle's example, okay? मिशेल का एग्जांपल लेंगे। Supposingly, ऐसा अगर होता है तो Ratan Tata comes रतन टाटा आते हैं and tells Michelle, hey, I'm giving you my Tata company. और मिशेल को कहते हैं कि मैं टाटा कंपनी आपके it नाम down. कर रहा हूँ, अब आप इसे चलाएं। Now, Michelle does not have any knowledge about Tata company. अब मिशेल को टाटा कंपनी कैसे चलाना नहीं पता है, She doesn't even know what is Tata company उसको about. शायद पता भी ना हो टाटा कंपनी है क्या। She just knows there is a car, Tata Indica, Tata Indigo. And then, what about Tata Steel Plant? Oh man, I've heard this for the first time. Okay, what about Tata Salt? I've heard this for the first time. और उसने शायद टाटा गाड़ियों के बारे में तो सुना होगा, बट टाटा स्टील और टाटा सॉल्ट के बारे में नहीं सुना होगा। Okay, she's been made the owner of that company. पर अब उसकी मालिक वो हैं, But if she doesn't know how to run that company, पर अब उसको अगर चलाना नहीं आता उस कंपनी को, time and time again, the company will start depleting. और समय नहीं निकलेगा कि वो कंपनी Deplete, गिरने नीचे हाँ। जाएगी. And at the end, the company will be destroyed. और अंत में होगा ये कि कंपनी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। It's not because Michelle is a bad leader. इसका मतलब ये नहीं है कि मिशेल एक अच्छी अगुवा नहीं है, It is because Michelle does not have the knowledge to lead the company. और इसका मतलब ये भी नहीं कि उसके पास बुद्धि नहीं है। Let's take one more example. एक और हम उदाहरण लेंगे। How many have seen Elijah? कितने लोगों ने एलाइजा को देखा है? Okay, it is Pastor Joshua's desire that Elijah drives his car. और पास्टर जोशुआ की दिल की इच्छा है कि एलाइजा एक दिन उनकी कार चलाए। Elijah, the little guy over there. एलाइजा okay? जो छोटा बच्चा है, But will he give Elijah the car right now? पर क्या एलाइजा को अभी वो कार देंगे? He is very ready for it. वो एलाइजा शायद तैयार होगा चलाने। Pastor Joshua is very ready for it. Like, पास्टर जोशुआ तैयार है देने के लिए, but he knows पर उसको उनको पता है if I'll give him the keys now, अभी मैं अगर चाबी दे दूंगा he will destroy himself and the car both. वो खुद को भी और कार को भी नाश कर Because देंगे, he is not ready. क्योंकि अभी वो तैयार नहीं है। So what he'll do is, तो क्या करेंगे, over time he'll prepare Elijah. वो एलाइजा को तैयार It will करेंगे। not start with take the car. वो शुरुआत इससे नहीं होगी कि ये लो कार, He'll be like, start walking, पहले बोलेंगे चलना शुरू करो, start eating right, फिर बोलेंगे सही खाना शुरू करो, start running, फिर बोलेंगे दौड़ना शुरू करो, and then start taking the bicycle out, फिर बोलेंगे कि पहले साइकिल चलाने लगो, and then start taking your bike out. फिर बोलेंगे मेरी बाइक लेके जाने And लगो। then he'll be like, oh man, I think Elijah, you're ready for my car. And he'll be like so happy. Come on, take the keys, go out. और फिर वो खुशी के साथ बोलेंगे एलाइजा लो मेरी कार की चाबी लो जाओ। Father wants to give you everything that you need. और पिता जो है वैसे ही आपको सब कुछ देना चाहता He है। wants to give you the best business. He wants to make you the most noblest, the greatest businessman that has ever been. वो आपको सबसे उत्तम आपको एक बिजनेसमैन बनाना चाहता है जिसको आपने शायद आज तक मिले भी नहीं होगे, But he's wanting you to be faithful. पर वो चाहता क्या है कि आप विश्वास योग्य So that बने, you don't, so that you come under the process ताकि आप उस जो प्रोसेस उसके अंदर आए, where you learn how to maneuver what you want later in your life. तो आप जो आपको आपके जीवन में आगे चाहिए उसके लिए आपको तैयार कर सके। Your salary is 10,000, you're asking God for an Audi. आपकी सैलरी जो 10,000 है और परमेश्वर से ऑडी मांग रहे हैं। भाई उसका एवरेज इतना कम है ना कि 2 दिन में आपका तेल पैसा पूरा निकल जाएगा. In 2 days your money will be over if you drive a Audi। But for an Audi, पर एक ऑडी के लिए he'll make you able that you have a 50 lakh salary that you can वो afford. पहले आपको तैयार करेगा कि आपकी 50 लाख की Okay. सैलरी हो। I'm giving you a lot of stories, man. बहुत सारी कहानियां मैं बता रहा हूँ। Now you understand what faithfulness is. अब आप समझ पा रहे होंगे कि विश्वास योग्यता क्या है। Now I'll give you 4 things about faithfulness. 4 चीजें मैं बताऊंगा विश्वास Come on, write it with योग्यता। me. आप लिख लें इसे। First is obedience. पहला है कि हम आज्ञाकारी बने, Acts 13:22 it talks about David's obedience. और प्रेरितों के काम में वो बताता है दाऊद के आज्ञाकारिता के बारे 1 में, Kings 3:6 also talks about David's obedience. और पहले राजा में भी हम देखते Can you हैं। show it on the screen? Let's go with Acts 13:22. So I'm going to take the obedience from the life of David, okay? और हम दाऊद के जीवन से सीखेंगे कैसे विश्वास योग्य होना है। Okay? The first steps towards faithfulness is obedience. और पहला जो कदम है विश्वास योग्यता का वो है कि हम आज्ञाकारी बने। Okay? ठीक है। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यीशे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा को पूरी करेगा. वही मेरी सारी इच्छा को पूरी करेगा. He will fulfill all my desires। Obedience in the simplest term is और जो आज्ञाकारिता है उसका मतलब ये है
aligning yourself in the plan of God. कि आप आपके जीवन को परमेश्वर के योजनाओं के संग अलाइन कर दें. आप अपने जीवन को परमेश्वर की योजना में मिला देते हो. Yeah, come on. ये obedience है. Simplest way. The first time God asked me to do something was पहली बार जब परमेश्वर ने मुझे कुछ करने के लिए कहा था वो तब था to leave the girl that I loved. जिस लड़की को मैं प्यार करता था उसको छोड़ने के लिए. She did not love me back, but I loved her. वो मुझसे प्यार नहीं करती थी बट मैं बहुत प्यार करता था. I was like a crazy one-side lover, okay? एक तरफा प्यार करने वाला था. And at the end, it happened. I lost the one I loved. और हुआ ये अंत में कि मैंने उस लड़की को खो दिया. Yeah, but that was the first time that he actually asked me to do something. और वो पहली बार था जब मैंने परमेश्वर को सुना मुझे कहते हुए कि ये कर. And I was very reluctant, man. और मैं बहुत मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था. For two years straight, I did not obey that. पर मैंने 2 साल तक उसको टरकाते रहा. Yeah, that is a good word. टरकाते रहा. You know? But the moment I did it, I saw tremendous blessings coming in my life. पर जैसे ही मैंने वो चीज़ जो परमेश्वर ने कहा करने के लिए मैंने किया मैंने देखा मेरे जीवन में आशीष आने There लगी. are certain promises of God हमारे जीवन में कई सारे परमेश्वर के ऐसे प्रॉमिसेस हैं that come with obedience. वो आज्ञाकारिता के साथ जुड़ी हुई हैं. Okay? So the thing is, sometimes we think कई बार हम ऐसा सोचते हैं that भाई प्रभु से हम तो कुछ सुन नहीं रहे या प्रभु ने हमें से कुछ बोला नहीं है. God has not spoken to me. Yeah. All of you understand Hindi? सबको हिंदी समझ आ रहा है? So मैं बीच में बहुत सारी हिंदी बोलूँगा ताकि I can save up some time, okay? Because मैंने अभी पहला point start किया है. ठीक है? और हम कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु ने हमारी हमसे कुछ बोला नहीं तो हम रहने देते हैं. एंड हम कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि प्रभु ने हमसे बात नहीं करी है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रभु आपसे बात कर रहा है, भले आपको उसकी आवाज़ नहीं भी सुनाई दे रही है. पता है कैसे बात कर रहा है? आपके अथॉरिटीज़ के थ्रू. आपके अथॉरिटीज़ पता है कौन है? पहले है आपके पेरेंट्स, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग है आपके स्पिरिचुअल लीडर्स. गॉड इज ऑलरेडी टॉकिंग टू यू थ्रू योर पेरेंट्स एंड योर स्पिरिचुअल लीडर्स. ठीक है? और बाइबल कहती है टेक माई योक अपॉन यू. वचन कहता है कि मेरा बोझ ले लो. हाँ, दैट मीन्स जिस बोझ में आप चल रहे हो ना वो बहुत ही अलग बोझ है. इसी कारण आप स्ट्रगल कर रहे हो. द थिंग व्हाई यू आर स्ट्रगलिंग सो मच इज बिकॉज यू हैव टेकन अ डिफरेंट योक. और आप इसलिए आप परेशान हो रहे हो क्योंकि आपने दूसरे का बोझ ले लिया है. बट व्हेन यू टेक द योक ऑफ गॉड, पर आप जब परमेश्वर का बोझ ले लेते हैं लाइफ बिकम्स इजी. आपका जीवन आसान हो जाता है. यू नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फीलिंग पीस अबाउट समथिंग और कुछ चीज़ों के बारे में शांति महसूस होना एंड फीलिंग चैलेंज्ड अबाउट समथिंग. और कुछ चीज़ों के बारे में आपको चुनौती मिलना. एंड समटाइम्स वी कंफ्यूज पीस विद चैलेंज. और कई बार हम जो है दोनों को अदला बदली कर देते हैं. वी आस्क गॉड आस्क्स अस टू डू समथिंग परमेश्वर ने हमसे कहा कुछ करने के लिए एंड सडनली व्हेन वी सी दैट चैलेंज और जैसे ही वो हमें देखते चैलेंज आ our रहा inner है being shakes up और हमारा अंदर सब हिल जाता है. and you're like, oh man, I don't feel peace about it. और God, आपको it's ऐसा not लगता है कि अरे मुझे शांति नहीं मिल रही है इस चीज़ को true. I करने want to में. tell you मैं आपको बताना चाहता हूँ that's a challenge, वो एक चुनौती है. but within that challenge you will also feel peace. पर उसके साथ साथ आपको पीस भी फील You know what peace is? आपको पता है शांति क्या है? Peace does not change even when situations come. शांति बदलती नहीं है हमारे जो भी हमारे साथ होता है उसके कारण. Even when you have peace over your life, अगर आपके जीवन पे शांति है things will change, चीजें बदलेंगी, situations will change, व्यवस्था but the बदलेगी, peace of God will remain the same. पर परमेश्वर का शांति आपके जीवन में बना रहेगा. Okay? So it is very important. Hebrews 13:7 says, obey your spiritual leaders. और इब्रानियों में कहता है कि आपके आत्मिक पिताओं का आप लोग आदर करें, सुने. If God is not talking to you, अगर आप परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहा है that means he's already talked to you about something. तो आपसे पहले ही वो बात कर चुका है शायद. Listen to that. उसको सुने पहले. He's given you authorities to speak to. आपके जीवन में आपके ऊपर अधिकारियों को दिया है. When Isaac got married, जब इजाक की शादी हुई, this is gonna blow up. When Isaac got married, जब इजाक की शादी हुई he obeyed Abraham. वो अब्राहम का आज्ञा मान रहा था. बस इतना ही काफी है. He did not hear anything from God, but he just obeyed Abraham. परमेश्वर की ओर से कुछ नहीं सुना बट अब्राहम उसके पिता से सुना. Okay? Sometimes कभी कभार obedience हमारे जीवन में might आज्ञाकारिता seem like a stupidity. ऐसा लगा कि ये बेवकूफ़ी है. भाई बेवकूफ़ी है. उसको जाके बोलूं प्रभु तुमसे प्यार करता है, बेवकूफ़ी है. या मैं ही भूल गया कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ. हाँ ठीक है.
Sometimes God will ask you to do certain things that might seem stupid to you. और आपको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर जो बोल रहा है वो बहुत बेवकूफ़ी का काम है, Okay? But trust me. पर आप उस विश्वास करें. बस अपना फोकस अपने ऊपर से हटा के Yeah. परमेश्वर के ऊपर लगाओ. Come on. बिकॉज जो पर्सपेक्टिव से वो देख रहा है, जब आप वैसे देखना चालू करोगे ना, आप अपने आप समझ जाओ कि वो आपको क्यों करने के लिए कह रहा है. द लॉर्ड आस्क्ड मी टू सो माय वॉच परमेश्वर ने एक बार मुझे मेरा जो घड़ी है उसको बोने के लिए बोला, एंड आई वाज लाइक सो रिलक्टेंट मैन, और मैं बहुत, मेरे को नहीं इच्छा हो रही थी बिकॉज आई लव्ड इट. क्योंकि मैं उस घड़ी से प्यार करता था. So this was the last watch that I had, and from then I have not been wearing any watch. और ये आखिरी वॉच की कहानी बता रहा हूँ जो उसके बाद अभी मेरा वॉच नहीं है. And I was like, God, I think I cannot do it. और मैंने परमेश्वर से इतना तक कह दिया कि परमेश्वर शायद मुझसे नहीं होगा. It's just been 2 days and I'm loving this watch. और 2 दिन ही हुआ है मुझे घड़ी मिलके, मैं नहीं बोना चाहता. This was like my dream watch that I got. और ये मेरा सपनों का घड़ी था. And God told me, give it. और परमेश्वर ने मुझसे कहा दे दे. I asked for a word, और मैंने वचन मांगा, He gave me a word. वचन भी दे दिया. Easily. बहुत आसानी You know, से. sometimes you're like, give me a word, you're not getting a word, and then you're like, give me a word, and then He gives you. कई बार हम बोलते हैं मेरे को वचन दे, परमेश्वर वचन नहीं देता, बट ऐसी चीज़ों के लिए मैं पूछता वचन दे, परमेश्वर वचन दे देता. I gave that watch away. और मैंने उसको दे दिया घड़ी को. Okay? After 3 days, I felt so awkward. 3 दिन बाद मुझे इतना अजीब लगने लगा, I was not able to even go out और मैं बाहर भी नहीं जा पा रहा था because I thought, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा now I don't have a watch. कि अब मेरा घड़ी नहीं है हाथ में. Oh man, I used to wear these branded watches मैं इतने महंगी घड़ियां मेरे हाथ पे पहन रहा था, and I don't have any watch now. और अब मेरे पास घड़ी नहीं है. Oh, what are gonna people think about me? अब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. Ah. And then at that very moment the Lord told me, बेटे तुम अपनी पहचान को ना अपनी वॉच से निकालने लगे थे. Come on. Yeah. मेरा खोपड़ी हिल गया. मेरा खोपड़ी हिल गया. Sometimes कभी कभार हम लोग ना कुछ ज़्यादा ही लाइट्स कैमरा एक्शन के पीछे बहुत चले जाते हैं. नाइकी, गुची, whatever. और हम अपनी आइडेंटिटी को वहाँ से निकालने लगते हैं. बट आई एम टेलिंग यू, यू डोंट हैव टू डू इट. आपको नहीं करना है ये. आप चड्डी बनियान में भी प्रभु के बेटे हो. Come on. और आप अच्छी शर्ट और अच्छी पैंट में भी प्रभु के बेटे हो. और ये मेरे साथ 2 बार हुआ. एक बार जूतों के साथ हुआ, एक बार घड़ी के साथ हुआ. तब से मैं सीख गया भाई, अपनी आइडेंटिटी को चीज़ों से मत निकालो. मेरे को सोइंग, अरे आई हैव द ग्रेस फॉर सोइंग ना, तो प्रभु उसी को इस्तेमाल करेगा ना. समझ रहे हो? Yeah. Come on. नेवर एवर अपनी आइडेंटिटी को अपनी चीज़ों में से निकालना. बिकॉज आप उसके लिए बने ही नहीं हो, वो आपके लिए बना है. फर्क है भाई. Yeah. वो घड़ी आपके लिए बनी है, आप घड़ी के लिए नहीं बने हो. Yeah. आप ऑलरेडी प्रभु के बेटे हो जो भयंकर है. Come on. और वो घड़ी एक एसेसरी है जो आपको दे रहा है वो, पर उससे अपनी आइडेंटिटी को मत निकालना. Yeah. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट. ओके, अगला जो शीर्षक है कंसिस्टेंसी एंड एक्सीलेंसी. कि हम लगातार लगातार चीजें करें और और उत्कृष्टता से करें. और हाँ, या Yeah. निपुणता से करें. ठीक है? कंसिस्टेंसी मीन्स किसी चीज़ को बार बार करना. ठीक है? Yeah. इसके लिए आप लिख सकते हो 1 कोरिन्थियों 15 का 58. मैं जल्दी जाऊंगा, ठीक है, बिकॉज मेरे को जाना है जल्दी, टाइम नहीं है. ठीक है? सो मैं आपको एक स्टोरी शेयर करता हूँ. ठीक है? 1 कोरिन्थियों 15 का 58 आप लिख सकते हो उसमें. ठीक है? जिसमें वो कहता है कि कंटिन्यूली काम करते रहो. ठीक है? कंसिस्टेंसी क्यों कंसिस्टेंसी? सी, किसी भी चीज़ को, जब आपको कुछ चीज़ को डेवलप करना है, आपको ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को बार बार करो. और एक्सेलेंसी का मतलब होता है सबसे बेस्ट करो. जितना बेस्ट आपको आता है ना, उतना बेस्ट तरीके से करो. Yeah. ठीक है? एक स्टोरी सुने? कितने लोगों ने टाटा मोटर्स का सुना है? Yeah. चलो आप चूज करो, अमूल या टाटा मोटर्स, कौन सा? टाटा. टाटा. चलो लेट्स गो विद टाटा. सो टाटा पहले ट्रक्स का बिजनेस और स्टील के बिजनेस में था. ठीक है? मैं जल्दी जा रहा हूँ. टाटा ट्रक्स और स्टील के बिजनेस में था. और उसके बाद टाटा ने सोचा, रतन टाटा जो बेटा था टाटा का, जमशेद जी टाटा का बेटा रतन टाटा ने सोचा, अब मैं कार का बिजनेस चालू करूंगा.
ठीक है। तो उन्होंने जो पहली कार बनाई इंडिका, उनका आइडिया ये था उसके पीछे कि मैं इसको फ्यूल एफिशिएंट बनाऊंगा, कि इसका पेट्रोल ज़्यादा निकलेगा, इसमें जगह बनाऊंगा और इसको और सस्ता कर दूंगा ताकि और कार्स लोग खरीद सके, नॉर्मल इंडियन लोग कार खरीद सकें। क्योंकि उस ज़माने में जो बाहर के ब्रांड्स थे, Hyundai, फोर्ड और ये सब बहुत महंगे ब्रांड्स थे, तो नॉर्मल इंसानों को अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। ठीक है। सो टाटा ने पहली कार बनाई ट्रक्स के बिजनेस में, पहली कार बनाई। जैसे ही उसने इंडिया में लॉन्च करी, इंडियंस ने उससे बहुत नफरत किया, टाटा की बिक्री नीचे गिर गई, गॉन। पहली इंडिका, दे फेल्ड बट दे वर लाइक ओके, वी गोना लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, और ने बोला कि हम अपनी गलती से सीखेंगे, एंड देन दे स्टार्टेड बिल्डिंग दैट कार अगेन। और फिर से वो गाड़ी को बनाने लगे। उन्होंने देखा क्या गलती है, और उसके बाद उन्होंने बनाना कार को चालू किया। फिर से गए, फिर फेल हो गए, फिर फेल हो गए। दे वर लाइक फाइन, लेट्स गिव इट टू फोर्ड, हम इसको फोर्ड को देते हैं, फोर्ड कुछ कर लेगा। पता है फोर्ड ने उनसे क्या कहा जाके, भाई तुम ट्रक के बिजनेस में अच्छे थे, कार के बिजनेस में मत घुसो, तुम्हारी बस की बात नहीं है, छोड़ दो इस प्लान को। ये बोला। टाटा ने कहा नहीं, आई विल डू इट अगेन। टाटा वेंट देयर, started building it, and उस टाइम पे इंडिका blew up like crazy। आप देख रहे थे इंडियन स्ट्रीट्स पे हर कोई इंडिका को खरीद रहा था, और अब देखो, तब इंडिका चल रही थी। अब टाटा ने जो हाईएस्ट सेलिंग जो अभी कार आई है वो टाटा की, पता है कौन सी है? टाटा पंच, हाईएस्ट सेलिंग कार। ठीक है। बट इट नॉट स्टार्ट फ्रॉम पंच, इट डिड नॉट स्टार्ट फ्रॉम सफारी, इट डिड नॉट स्टार्ट फ्रॉम हैरियर, इट स्टार्टेड विथ अ कार, इंडिका। और बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों से शुरुआत नहीं हुई, पर इंडिका से शुरू हुई। You see, consistency is not a physical principle. और लगातार करने का जो ये मूल्य है, ये नहीं है कि हम करते It's a रहें, spiritual principle ये एक आत्मिक सिद्धांत है that people have applied in their lives. जो लोगों ने अपने जीवन में लागू किया So consistency alone would not work, okay? तो अकेला हम लगातार करने से नहीं चलेगा, Consistency and excellency. पर उसके साथ साथ हमें सबसे बढ़िया करना है। तो जो भी आपको अपने काम में करना है, क्या आप अपना बेस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कि आपने उसको अपना हर रोज का मंडेन बना दिया है कि कर लेते हैं, करना है तो कर लेते हैं। भाई ऐसे ग्रोथ नहीं आती है। एक चीज को करो और उसको बेहतर करते जाओ, अपना बेस्ट दो ना। प्रभु नहीं चाह रहा है कि आप टाटा के लेवल का करो, पर प्रभु चाहता है कि आप अपना बेस्ट दो। यू सी, यू आर नॉट वर्किंग फॉर पीपल। आप लोगों के लिए नहीं कार्य कर आप रहे। अपने ऑफिस में आओ, अपने लोगों के लिए, आप अपने ऑफिस के आप अपने बॉस के अंडर तो हो, या अपने बिजनेस में आप ओनर तो हो, पर आप उनके लिए मेन कार्य नहीं कर रहे हो। बाइबल कहती है कि whenever you work as if you're working for me। तो ऐसे काम करो जैसे तुम मेरे लिए काम कर रहे हो। So when you work for God, you give your best। तो जब आप परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, आप अपना बेहतर देते हैं, सबसे उत्तम देते हैं। So the reason why you're not growing क्यों आप बढ़ नहीं रहे हैं? is not because you have a problem with yourself। आपके अंदर कोई कमी है, इसके कारण The नहीं। reason is you're not consistent, इसका कारण ये कि आप लगातार नहीं कर रहे जो आप you're कर, not doing it with excellence। और आप सबसे अच्छे उत्तम तरीके से नहीं कर रहे। स्कूल के टीचर हो, बेस्ट पढ़ाओ। हाँ, फुटबॉल में हो, बेस्ट खेलो। Come on. म्यूजिक में हो, बेस्ट करो, जितना आता है उतना करो, उसके बाद आगे का देखा जाएगा। बट व्हेन यू कीप डूइंग इट, यू विल सी माइटी चेंज, बिग ब्लो अप। आपको पता है ओवरनाइट सक्सेस कुछ होता नहीं है। लोग कहते हैं ना ओवरनाइट सक्सेस। मैं आपको एक बात बताऊं, सिंपल टर्म है, सिंपल टर्म, सुनना ध्यान से। मैंने पिछली बार प्रोफेसाई किया था ओवरनाइट सक्सेस के ऊपर जोसेफ की लाइफ के थ्रू, राइट? जोसेफ की ओवरनाइट सक्सेस थी, यस, सही है। पता है जोसेफ की ओवरनाइट सक्सेस कहाँ से चालू हुई? जब उसको एक पहली ड्रीम आई थी, जहाँ पे उसने बोला कि मेरे को एक सपना दिख रहा है कि लोग मेरे सामने झुक रहे हैं, और उसके बाद वो ड्रीम इंटरप्रेट करता गया, पर एक ऐसा पल आया कि फैरो ने उसको बुलाया और उसको उन्होंने टर्म कर दिया ओवरनाइट सक्सेस। बट आई वांट टू टेल यू, ओवरनाइट सक्सेस के पीछे का जो हार्डवर्क है ना, वो ये है बीइंग कंसिस्टेंट विद व्हाट गॉड हैज गिवन यू। बिजनेस है, कंसिस्टेंट बनो, एक्सीलेंटली करो, ग्रो करोगे। रिलेशनशिप्स है, कंसिस्टेंटली रिलेशनशिप्स को परस्यू करो, उसमें एक्सेलेंसी लेके आओ, ग्रो करोगे भाई, ग्रो करोगे। You don't have to ask for growth. Be consistent and be excellent for whatever you're doing, and you'll automatically grow. Okay? Oh man, 57. Can I give you a hard truth? क्या मैं आपको एक कड़वा सच बताऊं? Daniel 6:3 आप ले सकते हो एक्सेलेंसी के लिए, ठीक है? You can write those verses for excellency. Can I give you a hard truth? Whatever you need to grow in life जो भी आपको चाहिए जीवन में बढ़ने के लिए, has already been given to you. आपको पहले से ही परमिशन दे दिया है। Whatever you need, जो भी आपको चाहिए,
has already been given to you. आपको परमेश्वर ने पहले से दे के रखा है. So God is not gonna give you more. परमेश्वर आपको और नहीं देगा. God is gonna ask you to partner with Him with what you have, परमेश्वर बोलेगा कि जो तेरे पास है उसके साथ मेरे साथ मिल जा, so that you can grow more. ताकि आप और बढ़ सके. He needs your partnership, okay? उसको आपका साथ चाहिए. I had a dream. When I saw Sam Alex, I was like, man, I'm gonna become a writer and then I'm gonna produce music. जब सैम एलेक्स को मैं मिला था तो मेरे को ऐसा लगा था कि मैं एक गाने लिखने वाला बनूंगा और मैं म्यूजिक को निकालूंगा. And I had this desire. God knew my desire, okay? और परमेश्वर मेरे दिल की इच्छा को जानता था. And I told God, God, give me a laptop, please. और मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर एक लैपटॉप दे दीजिए. God did not give me a laptop. परमेश्वर ने मुझे लैपटॉप नहीं He was दिया. like, son, use this old laptop, please. परमेश्वर ने मुझसे कहा, ये जो पुराना लैपटॉप तेरे पास पड़ा है उसको इस्तेमाल It कर. was not my laptop. मेरा नहीं था It was my लैपटॉप, brother's laptop. मेरे बड़े भाई का था. And he had been using it since like 7 years, 6 years. और 6-7 साल से वो उसको इस्तेमाल कर रहे थे. And the process that I wanted to start, उसमें ना laptop फट जाता, ठीक है? And whatever I wanted to start, क्योंकि yeah. वो म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए बना ही नहीं था, ठीक है? हाँ. समझना. तो मैंने उसमें म्यूजिक प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया. प्रोड्यूस माय फर्स्ट सॉन्ग. पता है उसमें कितने दिन लगे मेरे को? करीबन 4-5 दिन लगे, जिसमें से 2 बार वो लैपटॉप क्रैश कर गया. मैंने 7 घंटा मेहनत किया. 7 घंटा मेहनत करने के बाद मैं कुछ काम इंस्ट्रूमेंट डालने वाला था, लैपटॉप क्रैश कर गया, पूरा डेटा गया. आई वाज लाइक, फोड़ दूंगा तेरे को. आई वाज जस्ट लाइक दिस बिकॉज वो लैपटॉप का डेटा ही उड़ गया पूरा. जो पूरी मेहनत थी पूरी खत्म हो गई. दिस वॉज 5 or 6 years ago. मैंने फिर से पूरी मेहनत करी. मैंने अपनी जो पहले गाने थोड़े बहुत जो 10-8-9 गाने निकाले थे, मैंने उस लैपटॉप से निकाले थे, ठीक है? ऑडियो क्वालिटी बहुत बेकार है. मैं सुनता हूँ जाके, मैं कहता हूँ क्या यार ये मैं था क्या? ऐसा था. बट आई गेव माई बेस्ट एट दैट टाइम. Yeah. 1 साल बाद पापा मम्मी गिफ्ट मी अ लैपटॉप. एंड दिस वॉज माई ड्रीम लैपटॉप. आई एम टेलिंग यू. बट इसका प्रोसेस पता है कहाँ चालू हुआ? एक लेनोवो के पुराने लैपटॉप में जिसका जी की चलना बंद हो गया था, और उसमें मैं काम कर रहा हूँ जो बार बार ख़राब हो रहा है, कुछ भी हो रहा है ना. लाइक Come on. आई एम टेलिंग यू, लोग हो सकता है कंसिस्टेंसी से कुछ लेवल बढ़ पाएंगे, बट क्योंकि आप परमेश्वर के साथ चलते हो ना, आपकी कंसिस्टेंसी ना, कहते हैं ना, टू द पावर बढ़ती है. व्हाट डू यू कॉल इट? टू द पावर, एक्सपोनेंशियली बढ़ती है आपकी. सो people of this world will become consistent and they will grow to a certain point. But because you're a child of God, you were faithful with 5,000, He can give you 50 lakhs. This is what is written in the Bible, okay? I'm not joking. बाइबल में लिखा है कि तुम 5 तोले के साथ फेथफुल रहे, मैं तुम्हें 5 शहरों का मालिक बनाऊंगा. Yeah. Come on. इसलिए जो है ना, उसमें कंसिस्टेंट बनो और एक्सीलेंट बनो, ठीक है? Yeah. Come on. ठीक है? और प्रभु अपने आप और देगा. लास्ट थिंग. आखिरी बात. Okay, second last thing. I'll go fast, okay? Last second बात. Stewardship. कैसे हम अच्छे भंडारी बन सकते. Okay, I'll give you an example for stewardship. ठीक है? So, have you seen a greenhouse? कितने लोगों ने ग्रीन हाउस को देखा है? ग्रीन हाउस एक रूम होता है. ग्रीन हाउस रूम एक रूम होता है जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं. तो ग्रीन हाउस के लिए आई थिंक लेट्स skip this. I'll give you the notes, okay? I don't want to. Last thing. Let's do it. ठीक है? मेरे को नहीं लग रहा है पवित्र आत्मा बोल रहा है, तो I'll skip that. I'll give you the notes दो. आप मेरे से नोट्स ले सकते हो, जिनको चाहिए मैं भेज दूंगा. लास्ट थिंग इज, वो लास्ट पर्सन का आपने सुना स्टोरी, उसने पता है क्या कहा? कि हम लोग पढ़ेंगे एक साथ, ठीक है? चलो चलते हैं. 24 अपन कहाँ थे? 25 थे, राइट? वी आर इन 25, मैथ्यू 25, ठीक है? चलो पढ़ते हैं. मैथ्यू 25 पढ़ते हैं एक साथ. रेडी? सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया. देख जो तेरा है वो यह है. ऊपर पढ़ो, उसकी क्या लिखा है 24 में? तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा कि हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है और जहाँ नहीं सीखता वहाँ से बटोरता है. पता है इस व्यक्ति के साथ दिक्कत नहीं थी कि ये मेहनती नहीं था. इस व्यक्ति के साथ दिक्कत ये थी कि इसका जो मालिक था ना, इसको इसकी डिस्टॉर्टेड इमेज थी, या एक गलत इमेज बनी हुई थी. ठीक है? दिक्कत ये नहीं थी कि ये मेहनती नहीं था. भाई ये मेहनती हो सकता था, बट क्योंकि इसके दिमाग में एक गलत इमेज बनी थी उसके मास्टर की, ठीक है, डर के मारे इसने पैसा छुपा दिया. इसने इन्वेस्ट ही नहीं किया. आप समझना, जब आपका इमेज पिता के लिए अगर डिस्टॉर्टेड होता है, या फिर आप अगर पिता को नहीं जानते, आपका पिता के साथ रिश्ता नहीं है, अपने आप आपके मन के अंदर डर आता है, और डर के कारण आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते और आप ग्रो नहीं कर पाते हो.
तो दिक्कत आपके मैनेजमेंट या आपके फेथफुलनेस में नहीं है, दिक्कत ये है कि आप शायद से पिता को जैसे जानना चाहिए आप वैसे नहीं जानते हो। ठीक है, होशे के 4:6 में लिखा है कि माई पीपल पेरिश बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। और लोग अज्ञानता के कारण नाश होते हैं। अज्ञानता के कारण नाश होते हैं भाई। शैतान नाश नहीं करता है, शैतान का तो हो गया, शैतान को निहत्ता कर दिया है, बट माई पीपल पेरिश बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। या द फादर लव्स यू पिता आपसे प्यार करता है एंड ही लव्स यू सो डियरली। और आपसे बेहद प्यार और करता है। बाइबल में लिखा है कि उसके प्रेम में कोई भय नहीं है। Come on. तो अगर आप कुछ भी चीज भय से करते हो तो अपने आप वो मिसमैनेजमेंट में चला जाता है। सिंपल है। Yeah. एग्जाम्पल ले, गिव मी एन एग्जाम्पल। चलिए इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। ये डर गया कि इसको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर ये पैसा खोता तो फिर तो ये पिटता। ठीक है, तो इसने ट्राई ही नहीं किया बिकॉज ही थॉट अगर कुछ नहीं हुआ तो पिता मेरे को बहुत मारेगा। दिक्कत ये नहीं है कि उसने ट्राई नहीं किया, दिक्कत ये थी कि वो डर गया कि उसने ट्राई नहीं किया। कई चीज़ें आपकी लाइफ में आप इसलिए नहीं करते क्योंकि आप डरते हो Yeah. कि अगर मैंने ये किया तो पिता गुस्सा हो जाएगा, अगर मैंने ये किया तो पिता नाराज़ हो जाएगा, अगर मैंने ये किया तो, अगर मैंने ये पाप कर दिया तो क्या होगा, अगर मैं ये करूँ तो क्या होगा। ये सोच आपको चीज़ों को करने से रोक देती है। आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर क्रेजी पोटेंशियल है, Come on. बट जस्ट बाय बीइंग अफ्रेड आप अपने पोटेंशियल को डिक्रीज कर देते हो। जस्ट बाय बीइंग अफ्रेड। एक बार पिता को सुन के बोल्ड स्टेप लेके तो देखो, एक बार किसी को गॉस्पेल प्रचार करके तो देखो, करके तो देखो। Yeah. डोंट बी अफ्रेड, कम ऑन से टू योर हार्ट, डरो मत, डरो मत। डरो मत। भले तुम कितनी भी गलती कर लो, भले तुम कितनी गलती करो, बोलो बोलो, भले तुम कितनी भी गलती कर लो, भले तुम कितनी भी गलती करो, पिता तुमसे उतना ही प्यार करेगा। पिता तुमसे उतना ही प्यार करता है। इसलिए इसलिए कोशिश करना मत छोड़ो, कोशिश करना मत छोड़ो, कोशिश करते रहो कोशिश करते रहो, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। क्योंकि तुमसे प्यार करता है। वो तुमसे नाराज नहीं होता है, तुमसे नाराज नहीं होता है। वो तुमसे इतना प्यार करता है वो तुमसे इतना प्यार करता है कि तुमसे 5 रुपए दे के, कि तुम्हें 5 रुपए दे के, जब तुम विश्वास योग्य रहते हो, जब तुम विश्वास योग्य रहते तुम्हें 5,000 रुपए देने के लिए हो, तैयार रहता 5,000 रुपए देने के लिए तैयार। है। Amen. Amen. So I want you to be fearless. मैं एक चाह- बार हाँ, मैं चाहता हूँ कि अपनी डर बने। एक पल के लिए ऐसा सोचो, अगर आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ का डर नहीं होगा तो आपकी लाइफ कैसी होगी। मैं वचन से बोल रहा हूँ, ठीक है, बाइबल में लिखा है, आप सबको पता है, 1 John 4 says in him there is no fear because perfect love casts out every fear. हाँ, फियर ऑफ गॉड एक चीज़ है। फियर ऑफ गॉड का मतलब ये होता है कि हम परमेश्वर से डरें। ठीक है, फियर ऑफ गॉड का मतलब ये होता है कि हम परमेश्वर को ऑनर करें और उसको रिवेयर करें, उसको इज्जत दें। वो फियर ऑफ गॉड है। ठीक है, वो है फियर ऑफ गॉड। बट इधर जो फियर की बात करें ना, उसके प्रेम में कोई भय नहीं है। भय, देयर इज नो फियर इन हिज लव, Yeah. देयर इज नो फियर इन हिज लव। सो थिंक अबाउट, क्लोज योर आइज अपने आंखों को बंद करें एंड थिंक अबाउट दिस थिंग। और आप इसे सोचें। व्हाट इफ यू वर फियरलेस? क्या होता अगर आप बिना आप डर के होते? देयर वाज नो फियर, कोई अगर डर नहीं होता हाउ वुड यू रिएक्ट टू थिंग्स? तो आप कैसे चीज़ों को आप देखते? You had no fear of making mistakes. आपको अगर डर नहीं लगता गलती करने का, You had no fear of blowing up in your life. आपको कोई डर नहीं था कि आप बड़े होंगे कि आप बड़ी गलती कर देंगे या या इतना बड़ा मेस कर देंगे कि उसको कोई सुधार ही नहीं पाएगा। come on. How would you live your life then? कैसे आप अपने जीवन को जीते? This is the kind of life that God wants from you. और इस प्रकार का जीवन परमेश्वर चाहता है Because He is not afraid of your mistakes. क्योंकि वो आपकी गलतियों से डरता नहीं है। He was not afraid of Abraham's, David's, Moses' mistakes. बाइबल में हम जितने लोगों को देखें उनके जीवन की गलतियों से नहीं डरता था He परमेश्वर, loved them. पर वो उनसे बेहद प्रेम करता था। Even when they made mistakes, जब उन्हें गलतियाँ की भी, He corrected them उनको सही किया and He brought them back to the track. सही रास्ते पे लेके आया। He is not afraid of you making mistakes. वो नहीं डरता है कि आप गलती करोगे, So don't stop thinking about making mistakes in life. इसलिए गलतियाँ करने के बारे में आप चिंता ना करें। But start thinking about, आप सोचना शुरू करें, Lord, परमेश्वर I want to enjoy this relationship with you. मैं ये रिश्ते को तेरे साथ में इसका आनंद उठाना चाहता You can only know the Father through the relationship. हूँ। मैं रिश्ते के द्वारा ही पिता को जान सकता And हूँ। how do you know the Father is like? और कैसे आप जानते हैं पिता कैसा है?
He is just like Jesus. वो यीशु मसीह के Because समान। Jesus said, यीशु मसीह ने I ऐसा have कहा, come मैं आया हूँ to display ये दिखाने के लिए the Father. पिता कैसा है। So just how Jesus was, जैसे यीशु मसीह था in the same way the Father is. वैसा ही पिता है, The same way. वैसा ही। Just like he loved the sinners, जैसे वो पापियों से प्रेम रखता था, just like he loved all those who were weak, जैसे वो कमजोर लोगों से प्रेम करता था, he loves you. वैसे ही आपसे प्यार करता I want to tell you, है। आपको बताना चाहता हूँ, faithfulness is more about the heart. विश्वास योग्यता आपके दिल के 3 says अपने दिल की रक्षा करोगी, हर बात की चीज़ उससे बहती है. So जहाँ पे भी आपका दिल होगा वहाँ पे आपका खजाना होगा. तो अगर आपका दिल विश्वास योग्य परमेश्वर के साथ है तो आप अपने आप विश्वास योग्य बन जाओगे ऑटोमेटिकली. So I just want you मैं to look चाहता at the Father now. हूँ कि आप पिता को देखें। Just want you to look at the Father. Just close your eyes. Thank you, Jesus. Thank you so much, Jesus. धन्यवाद यीशु। Just keep a hand over your heart अपने दिल पे हाथ रखें, and say, Father, बोले पिता help me to be faithful. मदद कर कि मैं विश्वास योग्य बनूं, Help me to be consistent कि मैं लगातार चीज़ों को करूं and help me to grow in excellence. और मैं एक्सीलेंस में बढ़ूं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Let these attributes ये चीज़ें मेरे अंदर be built up in my life. और बढ़ने पाए, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में, Amen. आमीन। Amen. So, मैं ऐसा विश्वास कर रहा हूँ जब आपने आज ये वचन सुना है, जो थोड़ा आपके पास है आप उसमें विश्वास योग्य रहना सीखेंगे, Come on, है yeah, ना? Because जो परमेश्वर ने आपको अभी आपके हाथ में दिया है, अगर आप उसमें विश्वास योग्य हैं, प्रभु ग्रोथ ऑटोमेटिक देगा। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, एक बड़ा सही एग्जाम्पल दे के मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। कहते भैया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मतलब हाँ, किस चीज़ के लिए? भैया कल मेरा पेपर है, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाया हूँ। तो मैं क्या प्रार्थना करूं? भैया आप प्रार्थना कीजिए, बस प्रभु की दया हो मैं पास हो जाऊं। 100 में से एक आध बार वो तुक्का लग जाता है। बट मैं कई बार ऐसे लोगों को या ऐसे स्टूडेंट्स को ये भी बोलता हूँ, हे ब्रो, जो प्रभु ने आपको स्कूल में दिया है शायद बहुत बच्चे हैं जिनको नहीं दिया है। क्या आप कंसिस्टेंट बनोगे? क्या आप फेथफुल बनोगे? भले आप 70 लाओ फेथफुल होके, पर आपके हृदय में आपको मालूम है मैंने अपना बेस्ट दिया। ठीक है, जहां आपको प्रभु ने रखा है ना, वहां अपना बेस्ट दो। सच बता रहा हूं, अपना बेस्ट दो। प्रमोशन अपने आप हाथ में आएगा, अपने आप हाथ में आएगा, और प्रभु ये करेगा। आमीन। क्योंकि उसकी आशीष आपके ऊपर है। दूसरों के ऊपर आशीष है कि नहीं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, पर मुझे इतना मालूम है वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने बेटे बेटियों को आशीष दी है, तो आपके ऊपर तो आशीष है। तो अगर आप 10% भी करोगे, परमेश्वर आपके लिए फेवर को खोलेगा, अनुग्रह खोलेगा। हम वेट करते हैं, प्रभु अनुग्रह खोल फिर मैं करूंगा। मैं कह रहा हूं आप पहले कुछ करो कि अनुग्रह खुल जाए। ठीक है, आप वो खाना बनाओ जो किसी के पास नहीं है, भीड़ अपने आप प्रभु लेके आएगा, वो उसका काम है। ठीक है, आपके पास, मेरे साथ बोलो, मेरे पास जो 5 रोटी 2 मछली है उसको मैं दे दूंगा, वो 5000 को खिलाएगा। समझ रहे हो? आपकी डिग्री 5 रोटी 2 मछली के बराबर है, 100 कॉलेज और हैं, कोई बात नहीं, आपके लिए वो ऐसा प्रबंध कर सकता है कि वो 5000 के लिए काफी हो जाएगा। ठीक है, पर आप विश्वासी योग्य रहो, वो 5 रोटी और 2 मछली से। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ ग्रेट वीक। अच्छे से खाना खाना, वीक एंजॉय करना, अपने काम में एक्सीलेंट होते जाना। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, गुड नाइट।